Good morning, students. In previous lecture, we have discussed the formation of a joint stock company and it is completed. Now, moving towards the next topic, that is important documents used in the formation of a company. When a public company goes to register the public company, these important documents, the three important documents are required. The first one is Memorandum of Association, second is Articles of Association, and the third one is Prospectus. These all three are very important documents for the registration of a public company. So, today we will discuss the Memorandum of Association, or we can say MOA. As I have already told you that the Memorandum of Association is the important document of our company, and here it is written it is a principal document of a company. Principal document means very important document which is required at the time of registration for a public company. It is also known as charter of a company. Why it is known as charter of a company? Because it is very important document for a company. Without this document, the public company cannot get registered in a registrar. ठीक है? And it is made for the outsiders like creditors, suppliers, general public, है ना. It is issued or it is made for outsiders and it is shown by a general public. What it is written means कि what the contents it is required, what the contents it is in MOA written, the powers, the objectives, and the scope of operations of a company. Powers, objectives means what will be the aim of a company, what is the objectives of a company, and what is the scope for a future purpose. स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स या ऑपरेशंस की जब हम बात करते हैं तो कंपनी ने फ्यूचर के लिए क्या चीज़ें सोच के रखी हैं, कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी स्कोप क्या है, मीन्स फ्यूचर में वो अपना बिज़नेस का साइज़ लार्ज करेगी, किस तरह से करेगी, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर पाएगी, क्या ऑपरेशंस हैं, क्या उस चीज़ की प्लानिंग की गई है, वो सारी चीज़ें MOA में रिटन फॉर्म में लिखी होती हैं. पावर्स मीन्स कि what is the financial position of a company, how many years company have got profit and how many years company have got loss. That is the power means to say the financial position of a company. Objectives, here it is written the objectives of a company means it is very simple, the aim of a company, and it is also describes the scope of operations of a company. किस किस फील्ड में, किस किस लाइन में कंपनी अपना वर्क करेगी या किस किस फील्ड के अपने प्रोडक्ट बनाएगी, आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है इसका, बिजनेस का साइज़ लार्ज करेगी या स्मॉल ही रहेगा, अगर अभी बिज़नेस का साइज़ स्मॉल है तो आगे लार्ज होगा या नहीं होगा, या उसके लिए क्या उन्होंने प्लानिंग की है. ये सारी चीज़ें MOA में रिटन फॉर्म में लिखी होती हैं. और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये आउटसाइडर्स के लिए इसको बनाया जाता है, आउटसाइडर्स लाइक क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, जनरल पब्लिक, और ये MOA उनको शो भी किया जाता है. It can be altered only according to the provisions made in the Companies Act regarding its alterations. कह रहे हैं एक बार MOA रिटन फॉर्म में लिख गया तो उसमें ऑल्ट्रेशन उसी हिसाब से हो सकता है जो कंपनीज़ एक्ट 1956 या कंपनीज़ एक्ट 2013 में ऑल्ट्रेशंस का क्लॉज दिया होगा. जैसे कोई भी रूल प्रिंसिपल ने पास किया, अब वो रूल पास होने की वजह से टीचर्स को या हो सकता है पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वापस से वो पेपर प्रिंसिपल के पास जाता है. अब प्रिंसिपल ये सोचते हैं कि उसमें क्या ऑल्ट्रेशन, क्या चेंजेस, ऑल्ट्रेशन मीन्स चेंजेस, क्या किया जा सकता है जिससे सब के लिए वो सूटेबल हो.
तो यहाँ कह रहे हैं MOA एक बार अगर बन जाता है तो उसमें ऑल्ट्रेशन या चेंजेस तभी हो सकता है जो चीज़ें कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 में ऑल्ट्रेशन के में क्लॉजेस दिए गए उसी हिसाब से ऑल्ट्रेशन या चेंजेस MOA में किया जा सकता है। कोई कंपनी अपनी तरफ से चेंजेस इसमें नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट पैरा लिखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा टू नो द लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ अ कंपनीज डीलिंग्स। लिमिटेशंस एंड स्कोप मीन्स कि इसको हम बाहर जो आउटसाइडर्स हैं उनको हम क्यों शो कर रहे हैं, ताकि वो जान पाएँ कि हमारी कंपनी की क्या लिमिटेशन है, क्या पावर्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, मतलब कितना उनके पास इस टाइम अभी प्रॉफिट है, कितने साल तक उन्होंने प्रॉफिट गेन किया, कितने साल तक लॉस गेन किया, ये सारी चीज़ें। और जब उनको ये पता होगा तभी वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या कंपनी के शेयर्स को ख़रीदेंगे। ठीक है, एज अ जनरल पब्लिक, एज अ जनरल पर्सन हम कभी किसी कंपनी में क्या सोचकर इन्वेस्ट करते हैं? जो कंपनी ज़्यादा साल तक प्रॉफिट अर्न कर रही हो या जिसका बहुत ज़्यादा गुडविल या रेप्यूटेशन हो मार्केट में। तो ये चीज़ें बताती हैं, MOA बताता है कि कंपनी की रेप्यूटेशन मार्केट में क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट वी हैव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंटेंट्स मीन्स क्या क्या क्लॉजेज, क्या क्या चीज़ें MOA में रिटन में लिखी होती हैं। तो देयर आर सम क्लॉजेज। Here we have 6 clauses which is written in a MOA. The first clause we have the name clause. Name clause जो कि MOA का first clause है, that is the name clause. Name clause as it is very simple, इसमें कंपनी का full and complete name लिखा होता है। ठीक है, तो नेम क्लॉज कंपनी का कंप्लीट नेम और फुल नेम इसमें रिटन फॉर्म में लिखा होगा। कह रहे हैं कंपनी का नेम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं बाय लॉ कि आप उसी हिसाब से अपनी कंपनी का नेम रख सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं देखिए। द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब स्टार्टिंग में जब हम आपको पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ये जो लिमिटेड वर्ड है या प्राइवेट कंपनी में जो प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, लास्ट में आपने देखा होगा किसी प्राइवेट कंपनी में PVT.LTD. तो PVT मीन्स प्राइवेट और LTD मीन्स लिमिटेड। तो ये क्यों लिखा होता है? क्यों? क्योंकि इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन एंड इट इज़ मेड बाय द लॉ। कंपनीज एक्ट में लॉ ने डायरेक्टली बोल दिया है कि जो पब्लिक कंपनी है उसकी चाहे नाम आगे कुछ भी हो, उसका लास्ट एंड किस पे होना चाहिए? लिमिटेड पे। और जो प्राइवेट कंपनी है उसका एंड किस पे होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड। तो इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा या नहीं देखा है तो अब देखिएगा, किसी कंपनी का नाम जो कि लास्ट में एंड जिसके हो लिमिटेड तो वो पब्लिक कंपनी है, और लास्ट में अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो दैट इज़ द प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस मींस कि कंपनी का नाम आप इसी हिसाब से रख सकते हैं, लॉ ने जो आपको रिस्ट्रिक्शन दिया है। पब्लिक कंपनी के लास्ट में लिमिटेड वर्ड होना ज़रूरी है और प्राइवेट कंपनी जो होगी वो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द नेम शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। ये तो हमने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी जब रजिस्टर होने जाती है, रजिस्ट्रेशन होने जाता है, तो उसमें जो प्रोमोटर है वो ये डिसाइड करेगा कि कंपनी का नाम क्या होगा। कंपनी का नाम किसी भी दूसरी कंपनी से आइडेंटिकल या सेम नहीं होना चाहिए। तो एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि किसी भी अदर कंपनी से उस कंपनी का नाम सेम या सिमिलर या आइडेंटिकल जिसको हम कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। सारी कंपनीज का नाम डिफरेंट होगा। द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव। कोई भी कंपनी आप नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन उसमें कोऑपरेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो कोऑपरेटिव वर्ड लगेगा तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी, तब वो कंपनी की कैटेगरी में नहीं रह जाएगी। ठीक है, द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक ऑफ द कंपनी विद अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड फोर्थ पॉइंट में ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसका कोई भी कनेक्शन या लिंक नहीं होना चाहिए।
मतलब अगर आपने पब्लिक कंपनी चाहे ओपन की है चाहे प्राइवेट कंपनी, उसका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नाम, उस जो कंपनी का नाम है उसका नाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ज़रा सा भी कनेक्शन या लिंक नहीं होना चाहिए। तो इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को सामने रख कर तब आप कंपनी का नाम रखेंगे, और वो कंपनी का नाम नेम क्लॉज में इंक्लूड होना चाहिए। MOA का जो नेम क्लॉज होगा उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, मतलब अगर MOA में नेम क्लॉज कुछ लिख दिया गया है, कुछ कंपनी का नाम लिखा गया है या कुछ भी लिखा गया है, तो इसमें आप ऑल्ट्रेशन या चेंजेस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको लॉ ने आपको ऑल्ट्रेशन का भी मेथड बताया है। अच्छा, एक चीज़ और, आप अपने नोट्स में सिर्फ नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज और जो भी हम आगे क्लॉज पढ़ेंगे लाइक ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो 6 क्लॉज हैं, इसमें सब में लास्ट में ऑल्ट्रेशन दिया है। देखिए नेम क्लॉज अभी हमने पढ़ा तो है ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज है तो इसमें भी ऑल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज। ऑल्ट्रेशन को आप अपने नोट्स में इंक्लूड मत करिएगा, क्योंकि इफ़ इट विल कम इन योर एग्ज़ाम, कि अगर एग्ज़ाम में आता है आपको MOA के बारे में लिखने को, या आपसे ये पूछा डायरेक्ट कि MOA के जितने भी क्लॉजेज़ हैं उनके नाम बताइए या उनका डिस्क्रिप्शन लिखिए, तब उस केस में आप ऑल्ट्रेशन नहीं लिखेंगे। अगर लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको पता है सारे, अगर आप एक का लिखेंगे तो फिर आपको सबका लिखना होगा। मीन्स अगर आपसे पूछा गया कि राइट द डिफरेंट क्लॉजेज़ अंडर MOA, तो अगर आप नेम क्लॉज लिखेंगे और इसका ऑल्ट्रेशन लिखेंगे तो फिर आपको सिचुएशन क्लॉज का भी ऑल्ट्रेशन, और जितने भी ऑल्ट्रेशन क्लॉजेज़ हैं उन सब का ऑल्ट्रेशन आपको लिखना होगा। इट्स बेटर कि आप सिर्फ क्लॉज के नाम और उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए कि क्या बातें क्लॉज में कही गई हैं। ठीक है, अभी हम आपको यहाँ, क्योंकि आपके सिलेबस में है और आपकी बुक में भी है, तो हम आपको समझा रहे हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, मतलब नेम क्लॉज में कैसे चेंजेस आप कर सकते हैं। A company can change its name by passing a special resolution and by obtaining a written approval of the central government. क्या रहे नेम क्लॉज में जब कंपनी का नाम लिखा गया है तो उसमें आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन या सेंट्रल गवर्नमेंट को का रिटन अप्रूवल, मतलब एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसमें आप अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आई वांट टू चेंज माय कंपनीज़ नेम, और उसका फिर जो भी लीगल फॉर्मेलिटी होती है वो आपको कंप्लीट करना होगा। इस तरह से आप अपने कंपनी का नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लॉज वी हैव द सिचुएशन, और वी कैन से डोमिसाइल क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज को डोमिसाइल क्लॉज भी कहते हैं, याद रखिएगा, अक्सर इसे शॉर्ट नोट्स में पूछा भी जाता है। अगर ये पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ सिचुएशन क्लॉज या व्हाट इज़ डोमिसाइल क्लॉज, तो आप कहेंगे कि सिचुएशन क्लॉज तो अलग था, ये डोमिसाइल क्लॉज कहाँ से आ गया। तो सिचुएशन क्लॉज को ही डोमिसाइल क्लॉज कहते हैं। सिचुएशन क्लॉज, जिसको हम डोमिसाइल क्लॉज भी कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि उस स्टेट का नाम लिखा जाएगा जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। मीन्स लाइक एक कंपनी स्टार्ट हुई यूपी में, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है यूपी में, बाद में कंपनी का साइज़ और लार्ज हुआ, उन्होंने अपने बिज़नेस का साइज़ लार्ज किया, तो हो सकता है कंपनी ने एक ब्रांच ऑफिस MP में भी डाली, मतलब किसी अदर स्टेट में। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्लॉज में कह रहे हैं उस स्टेट का नाम लिखा जाएगा जहाँ पर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहाँ पर उस स्टेट का नाम लिखा जाएगा। देखिए लिखा है, दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ अ स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इज़ टू बी सिचुएटेड। उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा, जिस स्टेट में होगा, उस स्टेट का नाम आपको इस क्लॉज में लिखना होगा। ये क्यों कहा गया है, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट के नाम से होगा। जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने जाएंगे तो जिस स्टेट में वो कंपनी, उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वो स्टेट ज़रूरी होता है। देखिए लिखा है इसी में कि द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ अ प्लेस, इट इज़ नेसेसरी बिकॉज अ कंपनी गेट्स द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम दैट स्टेट ओनली। कंपनी को रजिस्टर किया जाएगा उसी स्टेट से, मतलब मान लीजिए कोई कंपनी यूपी की है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस यूपी में, तो वो कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाएगा उसी स्टेट के नाम से। जैसे कोई व्हीकल आपकी है, आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब ख़रीदा भी यहीं से और रजिस्ट्रेशन भी यूपी में करवाया, तब आप जब अपनी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो उसमें स्टेट में लिखा रहेगा यूपी। वैसे ही कंपनी का भी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो उस स्टेट के नाम से रजिस्ट्रेशन कंपनी का होता है।
आगे पढ़ते हैं. द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी आर केप्ट. कह रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब वो ऑफिस, वो इम्पॉर्टेंट ऑफिस जहाँ पर कंपनी की शुरुआत हुई है और जहाँ पर कंपनी के सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं. एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस और एक होता है जिसको मेन ऑफिस भी कहते हैं, और एक होता है ब्रांच ऑफिस. तो मेन ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस होगा जहाँ कंपनी के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, और ब्रांच ऑफिस तो उसकी दूसरी ब्रांच होगी. ठीक, आगे पढ़ते हैं. अ कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस व्हेन इट स्टार्ट्स द बिजनेस एक्टिविटीज़ और विद इन 30 days ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन विच एवर इज़ अर्लियर. कह रहे हैं कंपनी का कोई भी ऑफिस एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है जब वो कंपनी की बिज़नेस की एक्टिविटी स्टार्ट करे, या वो जब कंपनी को का रजिस्ट्रेशन करवाने चल रही है उसके 30 days के अंदर ही अंदर, दोनों में से जो पहले हो जाए. मतलब हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है. जब आप बिज़नेस स्टार्ट करने चल रहे हैं या तो तब हो, या तो जब आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने चल रहे हैं तो उसके 30 days के अंदर अंदर आप कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस, एक मेन ऑफिस बनाना ज़रूरी है. ठीक है, वही ऑफिस उस स्टेट में होना चाहिए जिस स्टेट से आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है. ठीक, तो ये होता है सिचुएशन क्लॉज. अब इसमें क्या है, ऑल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज. अब इसके अंदर कैसे चेंजेस आप कर सकते हैं, देखिए. बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार्स ऑफ बोथ द स्टेट्स इफ़ द ऑफिस इज़ टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. कह रहे हैं कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और रजिस्ट्रार से सैंक्शन करवाना होगा दोनों स्टेट का. दोनों स्टेट मतलब उस स्टेट में जहाँ पर आपकी कंपनी पहले थी और उस स्टेट में जहाँ आपकी कंपनी, अक्सर क्या होता है कि कंपनी शिफ्ट हो गई किसी और स्टेट में, तो क्या करेंगे आप, तब इसके अंदर सिचुएशन क्लॉज में आपके चेंजेस आपको करवाना होगा. तो इसमें चेंजेस आप कब करवाएंगे, जहाँ कंपनी पहले थी उसके रजिस्ट्रार का, और जहाँ कंपनी जिस स्टेट में कंपनी अब है उसके रजिस्ट्रार का, दोनों से सैंक्शन मतलब परमिशन लेना होगा. मतलब पहले जिस स्टेट में कंपनी थी और अब जिस स्टेट में कंपनी है, दोनों रजिस्ट्रार का आपको सैंक्शन लेना होगा, दोनों से परमिशन लेनी होगी अगर आपको सिचुएशन क्लॉज में चेंजेस चाहिए तो. सेकेंड कह रहा है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली इफ़ द ऑफिस इज़ टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन द सेम स्टेट. कह रहे हैं अगर एक स्टेट में ही रहकर अगर आपकी कंपनी एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट हुई है तो भी आपको इसमें चेंजेस करवाने होंगे, और तब भी आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा. मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपकी कंपनी शिफ्ट हुई हो तो तभी आप अपने सिचुएशन क्लॉज में ऑल्ट्रेशन करवाएं. एक ही स्टेट में रहकर एक सिटी से दूसरी सिटी या एक टाउन से दूसरे टाउन अगर आप अपनी कंपनी को शिफ्ट कर रहे हैं तो भी आपको सिचुएशन क्लॉज में चेंजेस करवाने होंगे और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा. The third one is by passing an ordinary resolution if office is to be shifted from one locality to another within the same town. कह रहे हैं अगर एक ही स्टेट में एक ही टाउन के अंदर एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ला कह लीजिए, या एक एरिया से दूसरे एरिया अगर आपकी कंपनी शिफ्ट हो रही है तो उसके लिए नॉर्मल रेजोल्यूशन पास होगा. देखिए स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे या फिर एक स्टेट में ही रहकर एक टाउन से दूसरे टाउन जाएंगे. लेकिन अगर एक टाउन में ही हैं आप, एक ही सिटी में हैं और एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी आप अपनी कंपनी को शिफ्ट कर रहे हैं, तब आपको नॉर्मल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार से लेना होगा, परमिशन लेनी होगी. तो इस तरह से आप सिचुएशन क्लॉज में चेंजेस या ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं. द थर्ड क्लॉज अंडर द MOA इज़ ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्लॉज जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इसमें कंपनी का प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मीन्स मेन ऑब्जेक्टिव और उसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रिटन फॉर्म में लिखा होना चाहिए. देखिए लिखा है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव विद द कंपनी में परस्यू. MOA का सबसे मेन क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज. क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मीन्स मेन ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अगर कंपनी करना चाहती है तो दोनों रिटन फॉर्म में होना चाहिए. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंपनी का हो गया टू अर्न प्रॉफिट अगर प्राइवेट कंपनी है तो. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मान लीजिए सोशल वेलफेयर,
ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर रिटन फॉर्म में लिखा होना चाहिए। इसमें ये क्लॉज कंपनी की स्कोप और लिमिटेशन को भी डिफ़ाइन करता है कि कंपनी कितनी आगे तक जाएगी, क्या लिमिटेशन होगी, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट होगी, कैपिटल की कोई लिमिट तो नहीं है कि हम इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, साइज़ कैसा होगा, लार्ज होगा या स्मॉल होगा, अभी स्मॉल है तो बाद में लार्ज होगा तो कैसे होगा, और अगर नहीं होगा तो कैसे होगा। तो लिमिटेशंस और स्कोप भी ये क्लॉज डिफ़ाइन करते हैं। मेन आप ये समझिए कि कंपनी के प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिखे होंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं कंपनी को अपना ऑब्जेक्टिव जो है या एम जिसको हम कह रहे हैं वो ये सारी सिचुएशन को, अपनी कंडीशन को दिमाग में रख के तब अपने ऑब्जेक्टिव्स को या एम्स को इसमें लिखना होगा। मतलब अगर आप कंपनी का ऑब्जेक्ट या जो भी आपका एम है ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल। जो भी आपका एम है, जो भी आप बिज़नेस जिसका करने जा रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। द सेकेंड इज़ ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट बी कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। लॉ में जो भी प्रोविज़न कहे गए हैं उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कंपनी लॉ ने जो भी आपको प्रोविज़न लिख के दिए हैं कि इस सेक्शन के अंदर, ये प्रोविज़न के अंदर कंपनी को ये ही काम करना है या ये चीज़ ही कर सकते हैं, तो लॉ इन द आइज़ ऑफ अ लॉ प्रोविजंस में जैसे जो बातें कही गई हैं आपको वैसे ही फॉलो करनी है। अदरवाइज योर कंपनी विल नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। द थर्ड इज़ द ऑब्जेक्ट्स मस्ट नॉट बी इमोरल। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो इमोरल नहीं होना चाहिए। इमोरल मीन्स कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव आप लेके ना चलें जिससे बाद में जनरल पब्लिक को या हमारे कस्टमर्स को या हमारे वर्कर्स या सप्लायर्स या क्रेडिटर्स को नुकसान हो बाद में, या कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी आप उससे करें। इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ योर बिजनेस विल नॉट बी लीगल। इफ़ योर बिजनेस विल नॉट बी लीगल देन योर कंपनी शुड नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक, तो ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रख के तभी आपको अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है, और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो ऑब्जेक्टिव आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज में रिटन फॉर्म में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ऑल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। जैसे हम बाकी दोनों के हमने ऑल्ट्रेशंस पढ़ा कि नेम क्लॉज में हम कैसे ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, सिचुएशन क्लॉज में हम कैसे ऑल्ट्रेशन या चेंजेस कर सकते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे। In order to alter its object clause, a company must pass a special resolution and obtain the permission of the company law board. कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको चेंजेस करनी है, मान लीजिए किसी ने गलती से कुछ गलत लिख दिया या कुछ मिस्टेक हो गई, अब आपको उसमें चेंजेस करवाने हैं, ऑल्ट्रेशंस करवाने हैं, तो उसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन या स्पेशल परमिशन लेना होगा। किससे? कंपनी लॉ बोर्ड से। एक बार इसीलिए कहा जाता है कि क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर MOA के। अच्छा, MOA के क्लॉजेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप इसको जनरल पब्लिक को शो कर रहे हैं, और एक बार जनरल पब्लिक में जो चीज़ें चली गई तो फिर इसको चेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पब्लिक आपकी कंपनी के बारे में वैसे ही थिंकिंग, वैसे ही फीलिंग ले आती है। तो इसीलिए क्लॉजेस को बहुत सोच समझ के लिखना होता है, बहुत सोच समझ के करना होता है, और अगर इनके हिसाब से कोई गलती हो गई तो फिर ये सारे ऑल्ट्रेशंस आपको करने होंगे, इससे आप अपने चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर किसी से गलती हो गई है या कुछ गलत हो गया है तो आपको कंपनी लॉ बोर्ड से स्पेशल रेजोल्यूशन या परमिशन लेकर तभी चेंजेस करवाना होगा। ठीक है। फोर्थ क्लॉज इज़ लायबिलिटी क्लॉज। फिफ्थ है हमारा कैपिटल क्लॉज, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कैपिटल भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैपिटल क्लॉज मतलब कैपिटल के बारे में कह रहा है, तो यहीं पर आपको क्लॉज बताया जाएगा, उसके ऑल्ट्रेशन मीन्स चेंजेस कैसे आप कर सकते हैं वो बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल, कंपनी की कितनी कैपिटल होती है, कितनी कितनी टाइप्स की कैपिटल होती है, जो कि हम आपको थोड़ा सा हम आपको डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ हम डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट हमारा होगा एसोसिएशन, जिसको हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहते हैं। तो लायबिलिटी क्लॉज अब तक हमने थर्ड क्लॉज तक पढ़ा, लायबिलिटी क्लॉज से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा लेकर इसीलिए चल रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड अप टिल हियर।
And from the fourth point, from the fourth clause, that is liability clause, we will discuss it in next class.